اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی تبارک فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت پربرکت میں عید مباہلہ کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ میں نے جس آیہ کریمہ کو عنوان گفتگو قرار دیا، یہ آیہ کریمہ اسی عید مباہلہ سے متعلق ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 61، خالق کائنات اپنے حبیب رسول اسلام سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کر رہا ہے، اے رسول فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے رسول علم آنے کے بعد بھی اگر یہ مسیحی، یہ عیسائی آپ سے جناب عیسیٰ کے بارے میں کٹ حجتی کرے، زبردستی کی بحث کرے، فقل تعالو، تو ان کو آپ کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اولاد کو لے آئے، ہم اپنی اولاد کو لے کر آئیں گے، اور تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی خواتین کو لے آئیں گے، اور ہم اپنے نفوس کو لائیں گے، تم اپنے نفوس کو لے آؤ، ثم نبتہل، پھر اس کے بعد مباہلہ کریں گے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جو جھوٹے ہوں گے ان پر اللہ کی لعنت ہم بھیجیں گے۔ واقع مباہلہ یہ ہے، رسول اسلام نجران جو یمن کے پاس، یمن ہی میں پہاڑیوں میں ایک چھوٹا سا شہر آباد ہے جہاں پر عیسائی آباد تھے، وہاں پر رسول اسلام نے پیغام الہی کو بھیجا، دعوت اسلام دی۔ اس کے جواب میں ان لوگوں نے 60 آدمی کا ایک گروہ بنایا، بنانے کے بعد اس میں 10 بڑے عالم تھے اور 10 میں 3 بہت بڑے تھے۔ ان 60 آدمیوں کا، مسیحیوں کا ایک گروپ مدینے آتا ہے، اور مدینے آنے کے بعد رسول اسلام کی خدمت میں آتے ہیں۔ رسول اسلام کی خدمت میں آنے کے بعد رسول اسلام سے بحث کرتے ہیں، رسول اسلام سے یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ رسول انہیں کہتے ہیں کہ دیکھو عیسیٰ پیغمبر ہے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا اگر اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ عیسیٰ کا تو کوئی باپ نہیں، اس لیے کہ جناب عیسیٰ مریم کی اولاد ہے، مگر اللہ نے مریم کو بغیر شوہر کے عیسیٰ کو ان کے آغوش میں عطا کیا ہے۔ تو عیسیٰ کی ماں تو ہے مگر باپ نہیں ہے، لہٰذا یہ کٹ حجتی کر رہے تھے بار بار کہ جناب عیسیٰ کا خدا تو، جناب عیسیٰ کا باپ تو خدا ہے۔ رسول اسلام بار بار قرآن سے اور انجیل سے ان کو یہ دلیل دے رہے تھے، ایسا نہیں ہے، جب پروردگار عالم آدم کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو کیا عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا نہیں کر سکتا؟ وہ اس دلیل کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو عزیزان محترم، جب دونوں گروہ ایک دوسرے کی بات کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو، تیار نہ ہو، تو اس وقت معاملے کو خدا پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مباہلہ بہل سے ہے، بہل کے ماننا ہے چھوڑ دینا، اور عربی میں اونٹنی کا وہ بچہ جو تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کو رسیوں سے آزاد کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ آزادی سے ماں کی دودھ کو پی سکے۔
तो ऐसे ऊँटनी के बच्चे को अरबी में इबले बाहिल कहते हैं, यानी वो ऊँटनी का बच्चा जिसको आजाद कर दिया गया हो, जिसको छोड़ दिया गया हो। बहल के माने हैं छोड़ना। कुरान करीम की आयत में है सुम्मा नबतहिल, ये नबतहिल ही से बहल और इसी से मुबाहला लिया गया है। तो ईद मुबाहला यानी जहां पर कटहुज्जती मसीही कर रहे थे, ईसाई कर रहे थे, रसूल इस्लाम की दलीलों को कबूल नहीं कर रहे थे, तो परवरदिगार आलम ने रसूल को एक पैगाम दिया, इनसे कह दो कि मामला खुदा पर छोड़ दे। नबतहिल, हम दोनों मिलकर अब न तुम हमारी बात मानने के लिए तैयार हो और तुम्हारी बात तो हम कबूल नहीं कर सकते, इसलिए कि कटहुज्जती कर रहे हो, कोई दलील नहीं दे रहे हो, तो अब होगा क्या, मामले को खुदा पर छोड़ देंगे। नबतहिल, और उसके बाद होगा क्या, फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, अब दावे में तुम सच्चे हो कि हम सच्चे, तुम झूठे हो कि हम झूठे, अब ये खुदा पर छोड़ देंगे। जो झूठे होंगे उस पर अल्लाह की लानत होगी। लानत कोई गाली नहीं है, लानत यानी रहमत से दूरी। अगर किसी इंसान की जिंदगी का एक भी लम्हा रहमते इलाही से खाली हो, वो लम्हे जिंदगी लानती लम्हे जिंदगी है। तो अजीजान मोहतरम, रहमत का न होना ही लानत है, तो लानत आखिरत में मुस्तहक के अजाब है। तो लिहाजा रसूल इस्लाम ने कुरान की आयत को उनके सामने पेश किया, ठीक है तुम हमारी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो तो हम मुबाहला करेंगे एक मखसूस मकाम पर, तुम अपनी औलाद को लेकर आओ, हम अपनी औलाद को लेकर आएंगे, और उसके बाद हम अपनी औरतों को लेकर आएंगे, तुम अपनी औरतों को लेकर आओ, तुम अपने नुफूस को ले आओ, हम अपने नुफूस को ले आएंगे। जो हम में से झूठा होगा उस पर अल्लाह की लानत होगी। तो उसके बाद नसारा नजरान ये वक्त मांगते हैं, फिर आपस में मीटिंग करते हैं, और उसके बाद जो सबसे बड़ा अस्कफ आजम था, जो इनका आलिम था, उसने ये तय किया एक शर्त पर हम इनसे मुबाहला करेंगे, देखेंगे ये मकाम मुबाहला में, यानी एक दूसरे पर लानत करने के लिए, नफरीन करने के लिए, अगर रसूल, अगर मोहम्मद औलाद की जगह अपनी औलाद को ले आए, नुफूस की जगह अपने नुफूस को यानी अपने अहले खानदान को ले आए, औरतों की जगह अपनी बेटी को अपने खानदान वालों को ले आएंगे, तो हम इनसे मुकाबला नहीं करेंगे, क्योंकि अहले बैत का मकाम ये जानते हैं। हां, अगर ये सहाबा को लाएंगे तो हम मुकाबला करेंगे। तो इस बात पर मुबाहला तय पाया है। जैसी आयत नाजिल हुई उसी तरतीब के साथ रसूल इस्लाम काफिला लेकर मुबाहले में पहुंचते हैं। यह मकाम मुबाहला मदीने में है और जन्नतुल बकी से तकरीबन 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के फासले पर आज भी एक मस्जिद है, मस्जिद इजाबा। 2 रकात नमाज पढ़ना वहां पर मुस्तहब है। वहां पर जो उम्रा और हज के लिए जाते हैं तो बाज लोग वहां पर जाते हैं, आमतौर पर वहां पर रुकने का मकाम नहीं है, इसलिए जो मकामी जियारत करवाई जाती है दूर ही से बता दिया जाता है ये मस्जिद इजाबा है, ये मस्जिद मुबाहला है। आज जहां पर रसूल इस्लाम ने मुबाहला किया उस जगह पर मस्जिद है, मस्जिदुल इजाबा के नाम से, उसको मस्जिद मुबाहला भी कहते हैं। वहां तक जैसे ही रसूल इस्लाम अपने इस छोटे से काफिले को लेकर, एक हाथ में गोदी में इमाम हुसैन और उंगली पकड़े इमाम हसन, पीछे पीछे जनाब सैयदा और उनके पीछे मौलाए कायनात, औरतों की जगह फातिमा, नुफूस की जगह मौलाए कायनात, अबना यानी औलाद की जगह इमाम हसन इमाम हुसैन को लेकर जब मुबाहला के लिए रसूल इस्लाम आगे बढ़ते हैं, जैसे ही ये 60 ईसाई जो अपनी बात पर मुसिर थे कि ईसा खुदा के बेटे हैं, इधर रसूल फरमा रहे हैं बेटे नहीं है, बंदे हैं और रसूल है, तो इसी बात पर मुबाहला है। अब जैसे ही मसीहियों ने देखा कि रसूल अहले बैत को लेकर आ रहे हैं, तो एक ईसाई, ये सब के सब उलमा थे, इंजील पढ़े हुए थे, अहले बैत से मुताल्लिक इल्म था, इन्होंने जैसे ही अहले बैत के चेहरों पर निगाह की, फौरन ये कहने लगे ये वो चेहरे हम देख रहे हैं, अगर ये हुक्म दे तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ देंगे, ये ऐसे चेहरे हैं, हम इनसे मुबाहला नहीं कर सकते हैं। तो अजीजान मोहतरम, उन्होंने मुबाहला करने से इनकार कर दिया, गोया अपनी शिकस्त को मान लिया, मुबाहला नहीं हुआ है।
फिर उसके बाद नसराए नजरान ने जजिया देने पर ये राजी हो गए हैं, बात यहीं पर खत्म हो गई है। मगर ये ईद मुबाहिला ईद है, दो एतबार से ईद है। एक इस लिहाज से कि इस्लाम की फतह का दिन है मसीहियत पर, उस मसीहियत पर जो जनाब ईसा के बाद दीन को जिन्होंने बदल दिया है, जनाब ईसा को परवरदिगार आलम का बेटा कहने लगे हैं। तो मसीहियत पर इस्लाम की फतह का दिन ईद मुबाहिला है। दूसरे एतबार से यह सच्चों की ईद है, इसलिए कि इसमें काज़िबीन यानी झूठों पर लानत पढ़ी गई है। तो जो झूठे हैं, झूठों पर सच्चों की कामयाबी की ईद है। तो अजीज़ान मोहतरम, अगर हकीकी खराज देना चाहते हो, अगर वाकई ईद मुबाहिला की खुशी मनाना चाहते हो, तो हमें चाहिए कि सच्चों का साथ दे। कुरान करीम का भी यही हुक्म है, वकूनू मअ सादिकीन, सादिकीन के साथ हो जाओ। सदाकत यानी हकीकत को कबूल करना, सदाकत यानी हकीकत को बयान करना। तो अजीज़ान मोहतरम, सदाकत का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जबान से आपने एक चीज को देखा, जैसा देखा वैसे बयान कर दिया। सदाकत इंसान के किरदार में हो, सदाकत इंसान के अकीदे में हो, सदाकत इंसान के अहमाल में हो, सदाकत इंसान के गुफ्तार में हो, सदाकत इंसान के रफ्तार में हो, सदाकत इंसान की जिंदगी का हिस्सा हो। तो अजीज़ान मोहतरम, हमेशा सच्चों का साथ देना, इसलिए कि ईद मुबाहिला ने हमें यह पैगाम दिया है, वकूनू मअ सादिकीन, सादिकीन के साथ हो जाओ। और यह पैगाम है, जो झूठे हैं उन पर अल्लाह की लानत है। तो वाकई आप अहले बैत के चाहने वाले हैं, अगर वाकई हम ईद मुबाहिला मनाना चाहते हैं, तो हक यह है कि हम जिंदगी में कभी झूठ ना बोले और ना झूठों का साथ दे। हकीकत में यही है, अहले बैत सादिकीन हैं। अब यहां पर काज़िबीन कौन है, इतना जानने के लिए अगर कुरान की आयत ने बता दिया कि काज़िबीन कौन है, तारीख इस्लाम में कौन कौन काज़िबीन है, अगर इतना जानना है तो कुरान ने अहले बैत को सादिकीन कहा है। वकूनू मअ सादिकीन, सादिकीन के साथ हो जाओ। और वो सादिकीन कौन है, मुबाहिला में अमली तौर पर रसूल इस्लाम ने पंजतने पाक के साथ बता दिया कि जो काज़िबीन के मुकाबिल में आ रहे हैं वो सादिकीन है। अब कायनात में, तारीख में जो भी इनके मुकाबिल में आ जाए, चाहे वो मैदान में हो, चाहे वो किसी दरबार में हो, चाहे वो सकीफा में हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, अगर इन सादिकीन के सामने जो भी आ जाए वो काजिब है, कज़्ज़ाब है, चाहे उन्हें रवायतें और तारीख कितना ही सिद्दीक और सिद्दीका कहकर पुकारे। तो अजीज़ान मोहतरम, बस यही मैसेज है ईद मुबाहिला के, सच्चों के साथ हो जाओ। ये सच्चों के जश्न है, ये सदाकत का जश्न है। वाकई हम अहले बैत के चाहने वाले हैं तो सदाकत से हमारा रिश्ता होना चाहिए। वस्सलाम।